All right, everyone. So this session is about Chrome DevTools. So let's see how we can utilize it. So we'll go over here and we'll click slideshow and I'll start. Then, then, then this is for I usually add this so that in sessions what happens is when we do a slideshow, a lot of the PPT gets disclosed. All right, so deep dive with Chrome DevTools. This is part one, right? This would be probably a two-part series, could be a three-part series. Not sure because there is a lot of things to cover in Chrome DevTools. So let's see how it goes. All right. Important announcement before we start, right? You don't need to keep your phones on silent, right? Because why? Because अपने अपने घर में बैठे हो जैसे मर्जी फोन रख लो कोई दिक्कत नहीं इट्स नॉट लाइव इन पर्सन सेशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है राइट सो आई प्रॉमिस इट वुड बी बोरिंग एटलीस्ट नॉट टू मच थोड़ा थोड़ा हो सकता है ज़्यादा नहीं होगा ठीक है चलिए अगेन एक बार टॉपिक का नाम देख लेते हैं डीप डाइव क्रोम डेव टूल्स सो दिस इज अ ब्रीफ टाइमलाइन खैर हैंड्स ऑन में 25 मिनट लिखी है बट आई थिंक ज़्यादा जा सकता है राइट मोर देन दैट 35-45 मिनट्स हो सकता है दिस इज अ ब्रीफ टाइमलाइन इंट्रोडक्शन वाई एंड ऑब्जेक्टिव देन कंप्लीट हैंड्स ऑन FAQ if there are any and then we'll conclude FAQ शायद हम पीछे पुश कर देंगे depending on the time right okay before we move further I'll just give a brief introduction about me. So I am Shreyan Mehta. I am Karta Dalta for Samba Solutions. I am a Monstack developer and I have been programming for more than a decade now. So थोड़ा थोड़ा आ गया है. I love podcasting, both listening and doing. I have made many SaaS products. I have been a CTO for many startups. Recently, I made something called Flood GPT. That is also out there. Go check it out. It's renamed as Love GPT. I'm also writing a book. So I'm doing a lot of things right now. This is a QR code. You can scan this QR code or the link below. You can see connect with me dot at Shreyan. Both the links are working. Or directly you can go to my LinkedIn that is Devisam. So that if you have any issue, anything after the video, after the session as well, you can reach out to me. I'll try to reply to each and every one of you soon enough. Alright. So when you scan that QR code, you will see a page like this. Right now it says Triple ITV the presentation. When this is going, which is right now, right? This is an old screenshot. Right now, there will be a different poll or something, right? So we'll see who is active and who is not based on that. Just to make it a bit interactive. Alright, moving forward. Also, I'm like an API and a webhook. So for those who don't know what an API and a webhook is, basically I have a lot of friends who has companies and I go to a lot of events, both as a co-organizer and as a speaker. So I'm connected with a lot of students as well. So if there's someone who is looking for some internship and vice versa, you reach out to me. I would be able to help. I'll help my best. All right. About community. So I am building community, right? I am right now co-organizer of Open Source Weekend community in Ahmedabad, and I am very closely associated with GDGs. I have been to DevFest as speaker. I have attended a lot of DevFest, and I am also into close team with one of the GDGs on a future organizing team. So yeah, okay. So now that you know me, right? So why, right? किसी भी चीज़ हम सीखते हैं whenever we learn something we need to know why. Why do we need to learn developer tools? First thing is कि ये टूल का नाम ही यहाँ पे रखा है यार डेवलपर टूल आप तुम डेवलपर हो तो डेवलपर टूल पता होना ही चाहिए right? So it is very important. We'll go into details why. So some facts and figures because नंबर देखने में मजा आता है समझ नहीं आता नहीं मजा आता है so on an average, a developer creates 70 words per thousand lines of code. Right.
ये मैं ऐसे माप के नहीं आया हूँ, but it's a like stats which I will, the PPT has all the links जहाँ से sources लिए गए, right? 15 bucks per 1,000 lines of code, 30 times longer than writing a code, right? मतलब कोडिंग से ज़्यादा 30 times ज़्यादा टाइम लगता है बग फिक्स करने में. 75% of a developer's time is spent on debugging. Right? In the US alone, $113 billion is spent annually on identifying and fixing product defects or what we know as bugs. ठीक है, तो बग का और डेव टूल का क्या लेना देना, ये तो सब बात होगी बग की. तो डेव टूल के काफ़ी सारे यूज केसेस है. डेव टूल से आप आपके प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो. राइट, यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट, your website, your landing page, your landing page, your blog. Right? You can optimize the SEO of it. There is something called a lighthouse. Obviously, it won't show the dynamic SEO there, but it shows you that this H1 tags, this H2 tags, this. A huge part of it can be used into development, that is into debugging the bugs. How, I'll show you a part of it today. Let's move on. So here's a small graph. अगर आपको, if you didn't got the numbers which were thrown to you in the last slide, so here's an ugly pie chart, very basic. If you see 20% of the time in the complete dev cycle of, or 20% of the, if you see time of a developer, so 24-25% time is into writing the actual code. 15% is into designing architecture. 12% is into refactoring the code, right? So, okay, writing the code, we know very well what that is, right? I want to explain that. Designing architecture. By designing architecture, obviously we won't be making a framework, but by designing architecture, we mean is, okay, where what will happen. For example, if this gets uploaded, then okay, a trigger will be shown. A trigger will be triggered on which, say, a lambda function will be called, that will do some processing and call a webhook and something will drop in the bucket or whatever. That's the architectural side of things. In very layman terms. Then refactoring code is around 12% of time. Refactoring the code, as in, and a lot of times we have legacy code as well. So we have to refactor it. That is not exactly refactoring, but that is also part of it. Other refactoring is, say we change some routes, we change something else, we clean the code. Right? घर साफ करते हैं. So that's the time. And you can see most of the time, 40 or 50% of the time goes into debug. So we need to master the art, right? Since debugging is an art, it's not just science. So we need to master this art, which takes half the time of a developer thing. Because if we master this and if we are more efficient on this, we can save a lot of time and hence a lot of money. Alright. पैसे की बात हो गई तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. Some links, as I said, right? All the data that were there, I don't throw data or numbers just like that. I have that data from these sources. Right? Obviously, this source is good or not, that's up to you. You can verify it on yourself. You guys are smart enough. All right, moving on. So this is the, we just see, right? We just saw that how much debugging is important, right? And even after knowing that, the reality is that our debugging skills is just like this. Right? We just sprinkle around, try and catch and console logs. Right? That's not actual debugging. Definitely, there are some desperate times where this is important, right? As in, where you probably couldn't debug in an efficient manner. Then definitely, whatever, desperate times call for desperate actions. That's right. But this is not the proper way in most of the time. All right, that's all I have.
So the objective is increase productivity of debugging and debug efficiency. Right? That's the objective of this session series. Not just that, we'll also see how we can use to optimize things and other places as well. Okay. What all you try to cover? There are tools we call this that source tab, debugger tool, XHIEO, network tab, console tab, toggle device, elements tab, and one more thing we'll cover. That is one of the most important thing. That is DOM. Not this one. By DOM, I mean to say is document object modeling. Right? Let's get hands on. Shall we? चलिए शुरू करें. Okay. काम करते हैं. Let's just Google React. Let's take a framework. We can do it on HTML, CSS, JS as well. But in today's time, if we see, so हम सब ना सब कोई ना कोई framework use कर ही रहे होंगे. Let's do something like React, MUI, free templates. इसमें कोई template उठा लेते हैं. Okay? कोई भी उठा लेते हैं. ये ले लेते हैं. चलिए. ये पूरा सोर्स कोड अलग नहीं मिल रहा. एक मिनट काम करते हैं. सोर्स कोड वगैरह डाउनलोड करते हैं पहले. ये जो उन्होंने व्यू दिया हुआ है, वही हम यहीं से एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. सो मान तो ये आपका साइट है. ठीक है. अभी सबसे पहले बेबी स्टेप्स. विल टेक सम बेबी स्टेप्स. हाउ टू ओपन डेव टूल. एक तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो. राइट. एंड यू कैन प्रेस F12. ठीक है. तो मैंने F12 से किया. ये मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ. राइट. F12 किया. मैं अभी एक क्लियर कर देता हूँ. सो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब हैं. एलिमेंट इधर से एक दो फिर एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेज परफॉर्मेंस इनसाइट्स नेटवर्क परफॉर्मेंस मेमोरी एप्लीकेशन बहुत कुछ है. ठीक है. तो ये सब भी है. सब कुछ ट्राई करेंगे कवर करने का. लेकिन नॉट जस्ट टुडे. वी हैव टू पार्ट सीरीज. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे यू कैन सी ये बटन है. ये बटन किस चीज़ के लिए यूजिंग दिस. शायद ये हम सब ने यूज़ किया होगा. राइट. बट स्टिल आई विल से इट बिकॉज जिसने नहीं किया उसके लिए. मान लो मुझे ये एलिमेंट पकड़ना है. ये एलिमेंट का डॉम वाला डॉम फास्ट एंड फ्यूरियस वाला डॉम है. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग वाला डॉम मुझे देखना है. राइट. इंस्पेक्ट करना है. या तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकता हूँ तो भी वही खुलेगा. राइट. या खुला ये H2 टैग खुला. या फिर F12 में हूँ मैं. ये मैंने क्लिक किया. ये सारे ऐसे होवर करने पे सब कुछ दिखाएगा. एलिमेंट्स दिखाएगा. सो वी कैन select on say today. Right? It gives you the same element H2. Okay. So this is for element picking. ठीक है. इस पे बाद में आते हैं. बट सिंस हम एलिमेंट स्टेप में आ ही गए, चलिए ये शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इफ वी सी ये साइड का जो बार है एलिमेंट साइड. राइट. दिस इज द आपका जो पूरा रेंडर्ड जो पूरा HTML का ट्री होगा वो पूरा आपको यहाँ दिखेगा. ठीक है. HTML से लेकर ये HTML से स्टार्टिंग से वन तक है ना. आप जब भी किसी पे क्लिक करोगे यू कैन कोलैप्स अनकोलैप्स. ये सब बहुत कॉमन चीज़ है.
बहुत ऑब्वियस है राइट। ये ये डॉलर जीरो क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ बाद में, तो वो कंसोल में आएंगे, कोई बड़ी खास चीज़ नहीं है right? ये फिर ये हमें पूरा दिखाता है ट्री किसके चाइल्ड में है, जैसे अगर मैं डिव करूँगा, जैसे डिव नेक्स्ट, ये है उसका पेरेंट क्या है, बॉडी मॉडलाइट, ये रहा, कब पेरेंट कौन है, स्ट्रीम, ठीक है। तो ये भी दिखाता है, जैसे हम डैशबोर्ड वगैरह में नहीं होता है कि वो ऐसे ब्रेड ड्रम्स आते हैं कि आप इसके अंदर एरो, इसके अंदर एरो, इसके अंदर एरो, इसमें वैसे, ठीक है। तो ये पूरा अपना ये HTML का ट्री हो गया। इस पे राइट क्लिक करने पे भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ये हमारा टुडे वाला ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू सी ऐड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये इसमें ये क्लास है, एक एट्रीब्यूट क्लास दिया हुआ है, ठीक है। मान लो हमें इसको एक एट्रीब्यूट देना है आईडी, आईडी इज एन एट्रीब्यूट, तो हम यहाँ से ऐड करके दे सकते हैं कि आईडी, आईडी, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, खाली आईडी आ गए, इसके पीछे हम आईडी, क्या डालेंगे आईडी में, बताओ, टाइटल, फिर डाल देते हैं, और वहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ। सो ऐड एट्रीब्यूट, और जैसे ऐड कर रहे हैं आप ऐसे एडिट कर सकते हो, तो एडिट एज HTML, मतलब ये पूरा HTML ब्लॉक मिल जाएगा आपको, right? फिर डुप्लीकेट एलिमेंट, ये एलिमेंट को वही के वही नीचे दूसरा एक एलिमेंट ले आएंगे, जस्ट लाइक दैट, तो टुडे आ गए, अंडू चलता है यहाँ पे, तो मैंने अंडू कर दिया, और क्या होता है डिलीट एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिलीट दबा के भी डिलीट कर सकते हो, right? फिर कट, कॉपी, कॉपी में भी देखिए एलिमेंट कॉपी हो सकता है, एलिमेंट का आउटर HTML, मतलब जिसके अंदर का जो होगा वो नहीं चाहिए, खाली बाहर का HTML, फिर चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे। फिर कॉपी सिलेक्ट, सिलेक्ट ये बहुत काम की चीज़ है, इवन तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब करेक्ट तो होता है, लेकिन हम स्क्रिप्टिंग में ये सिलेक्टर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। बट ये सिलेक्टर बेसिकली क्या है, जैसे कि ये एलिमेंट है, तो आपको ये एलिमेंट सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके, तो उसमें आप क्या डालोगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट में H2, और इसमें ये सब तो जो है वो MUI के ही क्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या डालोगे, तो ये क्लास डाल दो, अभी के लिए वो पूरा स्क्रेपिंग चल रहा है, तो H2 डॉट, ठीक है, ये MUI ट्रैपोग्राफी हाइफन रूट, फिर डॉट, ये डाल दोगे, फिर डॉट, सारे क्लासेस डाल दो, सारे क्लासेस साथ में ही है, right? तो वो आपका सिलेक्टर बन गया, तो यहाँ से आपको सिलेक्टर भी कॉपी करके मिलता है। फिर JS पाथ हो गया, स्टाइल्स होगी, right? फिर एक्स पाथ हो गया, फुल एक्स पाथ हो गया, ठीक है। इसमें डिटेल ये JS पाथ, एक्स पाथ, फुल एक्स पाथ डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये आप हार्डली कभी यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, हाइड एलिमेंट, एलिमेंट हाइड कर देंगे, राइट, डिस्प्ले नन होगा उसमें। फोर स्टेट, ये आप सबको शायद पता होगा, जब हम बचपन में पढ़ते हैं स्कूल में, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड सूडो स्टेट्स, राइट, एक चीज़ होती है सूडो स्टेट्स, आपको ये यहाँ से भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो हो सकता है फोर स्टेट से होवर्ड फोकस, फिर ब्रेक ऑन, ब्रेक ऑन वाला जो पार्ट है वो हम सोर्स में कवर करेंगे। फिर एक्सपैंड रिकर्सिवली, मतलब करके वो एक्सपैंड होता जाएगा, रिकर्सिवली मतलब वन आफ्टर वन कॉलिंग अनदर। कोलैप्स चिल्ड्रन, मतलब मान लो इधर अगर मैं करूँगा तो ये सब कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। कैप्चर नोड स्क्रीनशॉट, मतलब खाली ये इतना जो नोड है कुछ जितना रेंडर हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा वो, स्क्रॉल इनटू व्यू। सो मान लो इस पेज में स्क्रॉल है काफ़ी सारा, ठीक है, तो और हम ऐसे कोई एलिमेंट पकड़ के बैठे हैं, जो विजुअली भी दिख रही है, व्यू पोर्ट में नहीं है, तो फिर स्क्रॉल इनटू व्यू, तो वो ऊपर नीचे जहाँ भी स्क्रॉल करना है वो अपने आप ब्राउजर स्क्रॉल करके ले जाएगा। फिर फोकस, वो फोकस रेक्टेंगल आता है वो। देन बैक सेटिंग्स, इसमें अभी नहीं जाएंगे। स्टोरेज ग्लोबल वेरिएबल, ये हमको अगर डायरेक्टली कंसोल में से एक्सेस करना है तो, मतलब ग्लोबल में डाल के, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का मोटा मोटा हमने देख लिया। तो राइट साइड से काफ़ी चीज़ है, तो जल्दी जल्दी से
कवर करेंगे। ओके, सो जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टाइल्स। ठीक है, ये सबने देखा होगा। इस चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये सब काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, तो आई वोंट स्पेंड मच टाइम ऑन इट, लेकिन मैं स्किप भी नहीं करूँगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ से आप क्लासेस फ़िल्टर कर सकते हो, सिलेक्टर्स फ़िल्टर कर सकते हो। देन ये जो मैंने कहा था सूडो क्लासेस, जो आप होवर वगैरह हो गया, वो यहाँ से आप जो यहाँ से था इसके अंदर वो सेम चीज़ यहाँ से भी आती है। ठीक है, तो ये जो है इससे क्या है कि एलिमेंट क्लासेस, ये देखो। ठीक है, ये सब जो क्लासेस चार पांच लगे उसमें से कोई चालू बंद करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ से। राइट, मतलब चालू मतलब कि वो क्लास नहीं होगा तो कैसा होगा सी एस एस वैसे। देन इससे क्लास ऐड होगा एक, तो इसके इसमें ऐड हो जाएगा। देन ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉगल कॉमन रेंडरिंग इम्यूलेशंस, ये आप मैं चाहता हूँ खुद ट्राई करिए। इनफैक्ट ये पहले नहीं आया करता था, काफ़ी वर्जन्स पहले डेवलप में, तो ये आप खुद ट्राई करिए, ये नया फीचर है ये। शो कंप्यूटर स्टाइल साइड में, कंप्यूटर का ये जो है वो यही से शो हो जाएगा, वो दिखाते हैं कैसा है। फिर यहाँ पे पूरा अपना आ जाएगा सी एस एस जो जो अप्लाई हो रही है, जो जो ओवरराइड हो गई है उस पर स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें खास वो है नहीं। राइट, एक आध चीज़ जो मैं और दिखा सकता हूँ शायद इसमें, दैट इज दिस। जैसे कि ये है आपका, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में आप या तो खुद तो टाइप करके लिख ही सकते हो, या तो काफ़ी सारे साइट्स भी है जहाँ से आप वो कोड ड्रैग एंड ड्रॉप से बनवा सकते हो, एंड देन उससे कोड जनरेट होगा सी एच एस का और आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। या फिर आप डेवलप में सीधा यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, इसका ये क्या किया हुआ है, बॉक्स शेडो ये सब है, और अंदर ये क्यूबिक बेजियर का कर्व दिया हुआ है और ये सेकंड्स दिया हुआ है। फिर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी एनिमेशन हैं उसका ऊपर डेमो भी दिखाएगा, कर्व दिखाएंगे। ये भी आप कर्व भी चेंज कर सकते हो। राइट, ये भी आप चेंज कर सकते हो, इससे ये चेंज होगा। राइट, ईज आउट, शाइन, काफ़ी सारे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो इसमें आप यहीं से आप खेल सकते हो और चेंजेस कर सकते हो, आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, ओके। सेम गोज फॉर द कलर व्हील। कलर व्हील भी हर जब ये सिलेक्टेड वो ना हो सब में आएगा, इस पर क्लिक करूँगा मैं, पूरा कलर व्हील आ गया। राइट, कॉन्ट्रास्ट आ गया। ठीक है, ये क्या है, इधर आपको ये सब पूरा मिलेगा आपको, ये ड्रॉपर मिलेगा आपको, पूरा इधर एक्सपोर्ट मिलेगा। यार यहाँ से आप चेंज करोगे, राइट, तो ये पूरा आपको सारे उसके अलग अलग फॉर्मेट्स दिखेंगे। एच एस एल हो गया, आर सी बी हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टाइल्स वाला। राइट, इफ देयर एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये अपना हो गया पूरा सी एस एस बॉक्स मॉडल। राइट, दिस इज जो हम पढ़ते हैं स्कूल में। राइट, तो ये उसका हाइट विड्थ हो गया, ये उसका पैडिंग हो गया, मतलब चारों बाजू जहाँ पे कहीं पे पैडिंग होगी तो यहाँ दिखाएगा वो कि पैडिंग पैडिंग पैडिंग। फिर ये हो गया आपका बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये आपका हो गया मार्जिन मार्जिन मार्जिन। अगर देखना है मैं आपको दिखाता हूँ। सी, ये एलिमेंट पकड़ दें। ठीक है, ये एलिमेंट भी देखा, ग्रीन कलर की चीज़ दिख रही है, इसका मतलब उसमें पैडिंग लगा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको आता है, बट स्टिल कवरिंग है, जिसको अगर समवन डोंट नो इट तो वो कवर हो जाए। कहीं पे मार्जिन दिखती रही है मोटी मोटी। राइट, सबसे पैडिंग ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हुई, ये देखो इसका मार्जिन यूज़ हुआ है, ये देखो। ठीक है, ऑरेंज कलर का ऊपर तो मार्जिन जोड़ के आया है। मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, बॉर्डर कहीं पे दिख नहीं रही मुझे ये पर्टिकुलर पेज में। बॉर्डर कभी यूज़ होती है, मतलब। ठीक है, ओके, तो एक कंप्यूटर हो गया। सेम इसमें भी वो चीज़ दिखाएगी नीचे। ये बेसिकली ये क्या है कि स्टाइल्स तो काफ़ी सारी लिखी होगी यहाँ पे, बस मल्टीपल सी एस एस अप्लाई होती है, लेकिन कंप्यूट हो गया मतलब फाइनल अप्लाई क्या हो रहा है, कौन सी वैल्यूज़ है वो यहाँ दिखेगी आपको। ठीक है, कि फ़ॉन्ट में अगर मान लो चार अलग अलग क्लासेस से आ रहे हैं, किसी ऊपर लगाया है किसी नीचे लगाया है। ठीक है, लेकिन अप्लाई फाइनल जो हो रहा है वो ये आएगा यहाँ पे, फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट साइज जो भी है आपका, ये फ़ॉन्ट सब कुछ यहाँ पे आएगा।
और इसके अंदर भी डिटेल में आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चले गए मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, किसी में भी, राइट? तो ये अंदर आप ओपन करेंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर सब कुछ आएगा। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लेआउट। सो लेआउट जो है ये, इसमें आपको, सो ये सब फ्लेक्स बॉक्स अगर आपको पता है, राइट? कि अ, आप ग्रिड बना के फ्लेक्स, फ्लोट, फ्लेक्स, ये फ्लेक्स बॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग इन CSS। तो आपको नहीं पता तो फ्लेक्स बॉक्स पहले पढ़ के आइए, ठीक है? और ये ओवरलेज है उसके। तो ये चीज़ भी वही स्टाइल्स या कंप्यूटर स्टाइल्स वाली चीज़ ही होगी, राइट? यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको सिलेक्ट भी करके दिखाएगा ये कौन सा है, ठीक है? ये कॉमोड है जहाँ से जिससे हम रिकॉर्ड कर रहा है उसका। सीधा यहाँ से आपको एलिमेंट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये पूरा बड़ा वाला एलिमेंट है, फिर ये कोई बैज है छोटा सा, ये वाला, राइट? यहाँ से मैं सीधा इसको चेक किया, क्या हो रहा है, फोकस आ रहा है उस पर, राइट? ठीक है। तो सीधे ओवरलेस दिखा रहा है फ्लेक्स बॉक्स में, कि ग्रिड ओवरले से ग्रिड भी उसका ही पार्ट है, राइट? इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये इतना फ्रीक्वेंटली आपको इसका यूज केस नहीं आएगा। और अगर इस पर क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू फॉलो ऑन। कमिंग बैक टू दिस इवेंट लिस्ट, ये हम सोर्स में कवर करेंगे। सेम गोज टू डॉम, ठीक है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेसिकली ये प्रॉपर्टीज क्या है, जो सिलेक्टेड होगा उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ठीक है? कि उसका इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल सब यहाँ मिलेगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सेसिबिलिटी। तो ये आर्या टैग जैसे लिखा है, तो आर्या जिस चीज़ को नहीं पता है, आर्या मतलब जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, राइट? हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली बट दे स्टिल ऑल्सो यूज वेब, तो उनके लिए आर्या टैग्स बनाए हैं। सो एक्सेसिबिलिटी इज वन ऑफ द की फोकस ऑफ W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए, उस पर हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे आगे जाके। तो ये क्या होता है, हम टैप 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 करके, आपने देखा होगा, फोकस रेक्टेंगल शिफ्ट कर सकते हो। तो जब अगर उसमें कुछ आर्या टैग होगा तो वो बोलेगा, बिकॉज दे कैन सी बट दे कैन हियर, राइट? तो काफ़ी सारे रीडर्स होते हैं उनके लिए। जैसे वन ऑफ द प्रॉपर पॉपुलर वन इज जॉस रीडर। वैसे जॉस ना, जॉस जबड़ा, वही सेम स्पेलिंग है, JAWS मोस्ट प्रोबेबली। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आता था। राइट नाउ कौन सा फेमस है, क्या चल रहा है पता नहीं। दिस इज, आई एम टॉकिंग 5-7 years बैक, ओके? तो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपका, ये पूरा आपका रूट वेब एरिया दिखाता है, ओके? ये आपका हो गया एलिमेंट्स टैब। नाउ बिफोर गोइंग टू कंसोल टैब, मैं आपको क्विकली एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो था, ये आगे सबको बताया होगा, राइट? टोगल डिवाइस टूल बार, ये करता क्या है, आपका ये डिवाइस मतलब आपका लैपटॉप था स्क्रीन था या डेस्कटॉप का स्क्रीन था, अभी आपका बन गया, डायमेंशन हो गया iPhone 12 Pro का। काफ़ी सारे इसमें ड्रॉप डाउन आते हैं, बेसिक बेसिक, राइट? आप कस्टमाइज भी कर सकते हो हाइट विथ को, राइट? यहाँ से आप थ्रॉटलिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि सस्ता फ़ोन हो, राइट? लो एंड मोबाइल, या फिर नेट ही नहीं है तो कैसा दिखेगा, या मिड टीयर फ़ोन है, राइट? यहाँ से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है? तो उस हिसाब से, और यहाँ से सीधा क्लिक करके भी कर सकते हो, टैबलेट आ गया, लैपटॉप आ गया, सब आएगा इसमें, ठीक है? तो अभी हम कहाँ गए थे, तो मैं बंद कर लेते हैं अभी, ठीक है? वो रिक्वायर कब होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो जब when we have to solve bugs for some specific screen, या फिर when we are designing something for a specific screen। नोट कि ये विजुअली है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब ये भी मैक से मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये आप विंडोज से करोगे, सो आईफोन जैसे, उसमें आईफोन का आपको स्क्रीन डायमेंशंस मिल जाएंगे, लेकिन आईफोन का क्रोम और एंड्रॉयड का क्रोम अलग रेंडर करते हैं चीज़ें थोड़ी। और आईफोन का क्रोम में सफारी का ही इंजन यूज होता है बिहाइंड द सीन। तो उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बट जस्ट मेक श्योर नॉट एवरीथिंग इज 100% रेप्लिकेटेड थे, ठीक है? ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
सो एलिमेंट्स टैब होगा, ये सब हो गया। कंसोल एक चीज़ है, राइट। पहले नेटवर्क पे चले जाते हैं। तो मैं इसको ना एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल आर। आउच। मेरे को लगता है शायद मैंने रिकॉर्डिंग, आई थिंक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बंद हो गई शायद, या फिर जस्ट स्क्रीन बंद हो गई, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, जो कुछ भी है, दैट्स फाइन। सो ये आपका हो गया नेटवर्क, रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक। तो ये आपका हो गया नेटवर्क टैब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। क्लियर। बिकॉज अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड, तो फ्रंट एंड बैक एंड वाले का मिलाप ही ये टैब पे होता है। फ्रंट एंड डेवलपर ये टैब देखिए, बैक एंड डेवलपर भी ये टैब देखिए, ठीक है। बैक एंड डेवलपर का ये नहीं है कि मैंने एपीआईज बना दी, पोस्टन में चल रहा है, तुम्हारा वहाँ नहीं चल रहा है। वो बोलेगा कि मैंने मेरा कोड चल रहा था स्टैटिकली, एपीआई बंद कर, एपीआई थ्रेड इशू है। ठीक है, ये लड़ाई नहीं करनी है, प्रॉपरली काम करना है इंडस्ट्री में प्रोफेशनली। या ये टैब ओपन करना है, देखना है क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। अगर बैकएंड डेवलपर बोल रहा है कि अगर अगर सिंपली यहाँ पे अगर 200 आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब है कि बैकएंड से मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें सही भेज रहा है। अगर उसने गलत स्टेटस को नहीं डाला है तो, राइट। तो इसका मतलब मोस्टली हुआ कि आपने उसको फ्रंट एंड में हैंडल अच्छे से नहीं किया रिस्पॉन्स को। 300 की सीरीज की बात नहीं करेंगे अभी। अगर 400 सीरीज का आ रहा है, दैट मीन्स 4x6 कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्लाइंट साइड से कुछ तो गलत भेज रहे हो। ठीक है, अगर 400 है तो प्रोबेबली आप पैरामीटर्स या पेलोड में कुछ गलत भेज रहे हो। 401 है तो इसका मतलब है कि आपका टोकन एक्सपायर हो गया है या यू आर अनऑथेंटिकेटेड। 403 है तो शायद आप फॉरबिडन हो, डू नॉट अलाउड। 404 है तो आप शायद जो राउट भेज रहे हो वो राउट में कुछ गड़बड़ है, इट्स नॉट यू नो नॉट फाउंड, एंड सो अगर 500 की सीरीज का आ रहा है, 5x आ रहा है, 500 हो गया, इंटरनल सर्वर एरर, 503 हो गया, 504 हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ बैकएंड से इशू है। यहाँ क्लियर है? ओके। स्टिल स्टेटस कोड इज नॉट कंफर्म बिकॉज डेवलपर बैकएंड से स्टेटस कोड चेंज करके भेज सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ गलत चीज़ हो भी रही है फिर भी डेवलपर 200 भेज सकता है, एंड वाइस वर्सा। अगर गलत चीज़ नहीं भी होगी तो भी 400 भेज सकता है, राइट। वो दैट इज पॉसिबल बट इट डजंट हैपन यूजुअली। ओके, अभी इसमें देखते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर। ये क्या है कि ये पूरा आपको रिकॉर्ड करेगा आपका पूरा, ठीक है। अगर ये स्टॉप्ड होगा तो ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। इससे क्लियर हो जाएगा, इसे मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ अभी। ये आपका फिल्टर का बार ओपन टॉगल करने के लिए है, ये सर्च करने के लिए। ये सर्च का यूज केस बताता हूँ मैं आपको। यूजर लॉक, ठीक है, चलेगा। डिसेबल कैश, ये इसलिए ताकि आप रिलोड करेंगे तो आप डीबग करो, राइट। तो कैश में कुछ आ गया है, वो बैकएंड वाले ने बोला कि मैंने चेंजेस कर दिए, तो अगर कैश में होगा तो यू प्रोबेबली माइट नॉट गेट द चेंज। सो दैट्स व्हाई डिसेबल कैश करके आप कर सकते हो, राइट। लेकिन ये तब तक ही होगा जब तक यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हाइल डेवलपमेंट इज ओपन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स डू कैश, बिकॉज इट्स अ फीचर, राइट। ओके, फिर यहाँ पे थ्रॉटलिंग है, ये इंटरनेट स्पीड की थ्रॉटलिंग है। फास्ट 3G, स्लो 3G, ऑफलाइन, राइट। अगेन इफ यू रिमेंबर, हमने पहले भी थ्रॉटलिंग की बात की, लेकिन वो डिवाइस या हार्डवेयर स्पेसिफिक थ्रॉटलिंग था कि लो टीयर, मिड टीयर, एक्सेट्रा। ये इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ से आपका नेटवर्क कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो, राइट, कि यूजर ब्राउजर ये सब थ्रॉटलिंग हो गया, सब कुछ वही पूरी चीज़। ये पूरा मॉड्यूल इसके अंदर आ गया। ये लाइन से ये लाइन के बीच का पूरा उसकी सेटिंग यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये अपलोड करने के लिए है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए। एच में विजिट क्या होगा, ये सबका जो डिटेल्स है पूरा जेसन फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करके दे देंगे, सो यू कैन हैव ए लॉग, ठीक है, कि मतलब आप डेवलपर को भेज सकते हो कि भाई देखो, राइट,
ठीक है। अभी नीचे की लाइन पे आते हैं। ये हाइड डेटा यूआरएल से, ये इसके यूआरएल हाइड करने के लिए जिसमें डेटा है उसके ज़्यादा तक काम नहीं आएगा। इन्वर्ट का भी आपको काम नहीं आएगा तो उस पर नहीं जाएंगे। थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट, जो थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट हो रही है उसको वो हाईलाइट कर रहा है, राइट। ठीक है, सर क्लियर हो गए। ब्लॉक रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट ब्लॉक हो गई है वो ब्लॉक हो सकता है सर्वर ने खुद किया, हो सकता है आपके वीपीएन ने ब्लॉक किया, एक्सेट्रा। हैश ब्लॉक कुकीज, जिसकी कुकीज ब्लॉक्ड है उसके लिए। ओके, अभी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हम अभी ऑल पे है, मतलब सारे वीडियो दिखेगा आपको। दिस इज समथिंग जहाँ पे आप एपीआई कॉल्स होंगी, ठीक है आपकी, तो सारी एपीआई कॉल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये एपीआई कॉल नहीं हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? जरूरी नहीं है कि एपीआई कॉल ही यहाँ पे होगा, लेकिन एपीआई कॉल्स यही पे दिखेगी, जैसे कि ये है। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स का कुछ तो एपीआई है, राइट। ओके, बट बेसिकली एक्सएलआर का मतलब क्या होता है? एक्सएमएल मतलब आपका ये जो एक्सएलआर क्या है बेसिकली, जो आप एजेक्स कॉल हो गया, राइट, वो आपका यहाँ पे फेच या फिर फेच जेएस का फेच आता है। ये आपने एक्सियोस से कॉल किया है तो वो सब यहाँ पे आएगा। फिर आपकी जेएस फाइल, सी एस एस मीडिया, ये सब, ठीक है। डब्ल्यू एस मतलब क्या, डब्ल्यू एस क्या हो गया? वेब सॉकेट्स, ठीक है, मैनिफेस्ट। ओके, अभी इसमें आप देखोगे क्या क्या चीज़ आती है अंदर। सबसे पहले तो ये वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। कौन सा पहले लोड हुआ, किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए आप अंदर जाओगे ना तो आपको क्या दिखाएगा, होवर करोगे आप इस पर तो आपको ये दिखाएगा कि वेटिंग फॉर सर्वर टू रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब ये कुछ प्रोसेस कर रहा है बैकएंड में, बैकएंड पहुंच गया रिक्वेस्ट, राइट। तो आपको दिखा रहा है कि टाइम तो लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है वो तो दिखा रहा है, ये टाइम लगा, कितना साइज का पेलोड है वो भी दिखा रहा है, क्या स्टेटस कोड वो भी दिखा रहा है, और डॉक्यूमेंट है क्या है। उसके अंदर इतना टाइम लग रहा है उसमें हो क्या रहा है, ये क्यों हुआ, ये सब, ये क्यों हो गया, स्टॉल हो गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एसएसएल वाला जो पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में नहीं होगा। डीएनएस लुकअप का भी मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में नहीं होगा अगर आपने अच्छा डोमेन रजिस्ट्रार चूज किया है तो। ये कनेक्शन, ठीक है, फाइन, नॉट दिस इज, ये सब ऐसा है कि जो आपके हाथ में मेजरली नहीं है। अभी ये जो चीज़ है, रिक्वेस्ट सेंड होने में टाइम लग रहा है तो या तो ब्लॉक हो रहा है कहीं पे, या तो कुछ और इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है, समथिंग एल्स। ये जो टाइम है ये आपका बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है प्रोसेस हो रहा हो सकता है बैकएंड में क्यू में चला गया रिक्वेस्ट, आइदर ऑफ द थिंग, बट बैकएंड तक पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिला और ये रिस्पॉन्स को डाउनलोड होने में टाइम लगा वो, ठीक है। इस पर एक्सप्रेशन में जा सकते हैं, इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। और ये सर्वर टाइमिंग एपीआई, दिस इज अ न्यू थिंग, राइट। तो इससे आपको थोड़ा और डिटेल में जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे आपको पता चलेगा। ओके, सो ये आपका हो गया नेटवर्क टैग, ठीक है। इसमें भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अच्छा, नेटवर्क टैग का यूज़ कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए कि आपको कोई एक चीज़ को एक बग है कि यहाँ पे टाइटल की जगह कुछ और, टुडे की जगह कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड में ये टुडे कहीं नहीं मिल रहा है, ये टेक्स्ट, आपने अपना वीएस कोड खोला, सर्च किया, नहीं मिला। दैट मीन्स हो सकता है प्रोबेबली ये बैकएंड से कहीं से आ रहा है, राइट। तो फॉर दैट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप सर्च करेंगे टुडे, ठीक है, यहाँ से आप सर्च करेंगे, ये तो फ्रंट एंड से ही है तो इसमें नहीं आएगा, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको आपकी एपीआई कॉल्स में से जिसमें से वो डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे सर्च होकर दिखाएगा। उससे फ़ायदा क्या है, आपको फिर वो एपीआई कॉल कहाँ पे हो रही वही ढूंढना है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि अच्छा कॉल हुआ आया, और उसके नीचे यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है, जो मैंने आपको केस बताया कि टुडे वाला या टाइटल वाला, वो तो ठीक है। हो सकता है यहाँ पे
टुडे आता है कभी कभार वो ठीक है, लेकिन कंडीशनली ये चीज़ चेंज हो रही है। तो करंट केस में लॉजिकली बग ये है कि ये नहीं कुछ और आना चाहिए। सो उससे उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। क्यों? आपने ये सर्च किया कि अच्छा ये एपीआई से आ रहा है, तो वो एपीआई जब आ रहा है तब वहाँ पे जाके बैठ जाइए डीबगर रख के, एंड उसका रिस्पॉन्स पे आप चेक करते जाइए, स्टेप इनटू करते जाइए। फिर आपको दिखेगा कि अच्छा ये वेरिएबल एक्स वाई जी था, ड्यू टू दैट ये इफ कंडीशन या फिर जो टर्नरी ऑपरेटर है उसके वजह से हमें ये वैल्यू मिल रही है। राइट, दैट्स हाउ दिस इज यूजफुल। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स, पिकर, टॉगल डिवाइसेस, नेटवर्क, दिस आर मोर और लेस कवर्ड। अभी और क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं हम? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स गो टू द कंसोल। तो पहले कंसोल में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसोल लॉग्स के लिए, एरर्स, वार्निंग्स, ये क्लियर करने के लिए। ये किसके लिए? कि ये आपकी मल्टीपल अंदर आई फ्रेम्स या जो भी होगा या एक्सटेंशन होगा उसके स्पेसिफिक आपको लॉग्स देखने के लिए। इस पे नहीं जाते अभी, ये आपका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन वॉच करने के लिए ये फिल्टर है, यहाँ से कुछ मल्टीपल लॉग्स आपको फिल्टर करना है तो डिफ़ॉल्ट लॉग जो यहाँ से हमने देखा वही सेम चीज़ है। ठीक है, ये हमने आपको इन्फो वाला दिखा रहा है, ये इन्फो वाला है। ठीक है, वन इश्यू इसमें आते हैं हाइड नेटवर्क। तो नेटवर्क का कुछ भी एरर या कुछ आएगा तो हाइड कर देगा। फिर लॉग XML HTTP रिक्वेस्ट, अगर आपने नोट किया हो तो इसका एब्रीविएशन क्या होगा? XML HTTP रिक्वेस्ट, XHR, जो मैं नेटवर्क में देखा, राइट, विच इज अल्टीमेटली एज आई सेड एजेक्स कॉल। राइट, जब एपीआई के कॉल करते हो एक्सीओस या फेच से, वो हो गया। बट इट्स नॉट जस्ट दैट, बट यूजुअली प्रिजर्व लॉग हो गया जो नेटवर्क में था वही। राइट, सिलेक्टेड कंटेंट, ईगर इवैल्यूएशन, ऑटो कंप्लीशन, सब बेसिक चीज़ें हैं। ये कॉर्स, राइट, कॉर्स का एरर आता है कॉर्स ओरिजिन वाला, तो उसके लिए। ठीक है, फिर ग्रुप करने के लिए सिमिलर मैसेजेस, वरना अगर एक मैसेज हियर 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 बार बार आ रहा है तो पूरा कंसोल भर देगा। तो क्या करता है, ग्रुप कर देता है, आगे एक बैच ले आता है। एक चीज़ आपको नेटवर्क में शायद नहीं दिखाई, वो थी यहाँ पे अगर ऑप्शन आता है, ये सेटिंग्स में, ये नेटवर्क का सेटिंग्स है। ग्रुप बाय फ्रेम, कैप्चर स्क्रीनशॉट्स, यूज लार्ज रिक्वेस्ट फ्लोस, मतलब ये रिक्वेस्ट फ्लो लार्ज हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, दैट्स फाइन, ये वो मुझे दिख ही रहा है। ये कैप्चर स्क्रीनशॉट्स, ये क्लिक करते हैं और भी रिकॉर्ड करते हैं। होगा क्या, जो जब जैसे जैसे चीज़ें रेंडर हो रही है आपको पूरा दिखेगा, फ्लो दिखेगा। देखिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, और इससे आपका यूज़र को क्या दिखेगा, राइट, जैसे पेज लोड करता है टाइम बाय टाइम आपको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा फ्लो। देखिए, ठीक है, ये पहले सबसे पहले ये आया, फिर 19 एम एस पे ये आया, 108 एम एस, 114, ये वो चेंज नहीं हो रहा आपको, ऐसा लग रहा है, राइट। ठीक है, दैट्स बिकॉज ये सब कुछ कुछ डायनामिकली लोड नहीं हो रहा है, और अभी सब कुछ कैश्ड है, दैट्स वाई। अभी कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखते हैं, चलिए। सी, इसमें ग्राफ नहीं आया, ग्राफ आ गया। ठीक है, और दूसरी साइड्स में आपको, बिकॉज ये CSR है, दैट इज क्लाइंट साइड रेंडर, तो इसलिए आपको ये सब सिमिलर सिमिलर दिख रहा है। आप कोई भी HTML पेज पकड़ लीजिए, उससे आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, ओके। अभी आपका एक कंप्लीट हो गया नेटवर्क टैब। कंसोल में काफ़ी चीज़ें हो सकती है करने के लिए, राइट। क्या आप कंसोल टैब में टेबल कैसे बना सकते हो? कंसोल टैब में आप
कंसोल और इन्फो कैसे यूज़ कर सकते हो, लॉक कैसे कर सकते हो, लेकिन उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं बिकॉज दैट इज़ ईजी। वॉट अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इज क्विक ट्रिक्स एंड जैसे कि ये है, कोई एलिमेंट में आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो जो मैं कहा था डॉलर ज़ीरो वाला, तो आप डॉलर ज़ीरो करके एंटर मारेंगे तो करंटली सिलेक्टेड जो भी एलिमेंट होगा वो आपको दिखाएगा। सी, राइट? सो दैट इज़ वेरी हैंडी बिकॉज हमें उसका ये नहीं करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेस करके ये सब डालना नहीं पड़ेगा, वही पूरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये कंसोल टैब का काम, लाइक आप एक चीज़ को दिखाया था कंसोल टैब में जहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं। मान लो हमको एक चीज़ पकड़ लेते हैं इसमें लिस्ट है, जैसे कि ये लिस्ट वाला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स होते होंगे इसमें। ये अपना ये टेबल है, ये टेबल है, ये बॉडी है, ये सारी टी आर है, ठीक है। तो मैं इसका सिलेक्टर पकड़ लेता हूँ और करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, ये तो पूरा उसने एंड स्टाइल तक दे दिया। एंड स्टाइल निकाल देते हैं and इधर ले लेते हैं ऑल। ये अनकॉट आया, ठीक है, क्यों? बस कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक, मैंने कहा था ना कि कोई सिलेक्टर कॉपी वहाँ से नहीं करते, क्योंकि ये सब जो क्लासेस है वो काफ़ी सारे जनरेटेड होते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ इसमें ये भी है कि ये एंड स्टाइल इसमें निकाला है नीचे से। ठीक है, ये क्या है, अपनी ये 5 रोज है, ये ठीक है, 1 2 3 4 5। अब सब कोई, ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो एक बार फिर से ध्यान दे दो यहाँ पे। ये आइकन दिख रहा है क्या आपको, ब्लू आर, इसको मैंने होवर किया, राइट? उसमें कुछ लिख के आ रहा है that this value was evaluated upon first expanding. It may have changed since then. पूरे सेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यों आप खाली कंसोल करके ही चीज़ें डिबग क्यों नहीं कर सकते। बॉस होता क्या है, कंसोल आपने कर दिया, आपने 10 जगह पे कंसोल लिखा है, ठीक है, तो जब आप डिबग करने बैठोगे और जब आप कोलैप्स ओपन करोगे तो हो सकता है वो वैल्यू चेंज हो गई हो, बिकॉज जब आप ओपन कर रहे हो तब वो एलिमेंट की वैल्यू आपको दिखाएगी, चाहे वो एरे हो चाहे जेसन हो, राइट? बट जब वो कंसोल किया था उसकी वैल्यू तब अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये कई सिलेक्टर मैंने लॉक करवाया हुआ था, मान लो कंसोल लॉक करवाया हुआ था और उसके बाद ये कई सिलेक्टर चेंज हो गया होता, कुछ और चीज़ चेंज हो गई होती, तो उसमें मान लो रिकॉर्ड ही चेंज हो गया होता या फिर रिकॉर्ड निकल गया होता, तो जब ओपन होगा मैं जब एंड में जब चेक करूँगा तो जिस टाइम चेक होगा उस टाइम का रिकॉर्ड दिखाएगा, ना कि जब बग हो रहा है और जब मैंने कंट्रोल किया है तो, राइट? सो दिस इज एक्सपैंडेड द फर्स्ट टाइम व्हेन ओपन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई debugger इज मोर, यू नो, ट्रस्टेड, इट इज मोर रिलायबल देन जस्ट अ लॉग। ठीक है, ओके। अभी आप एस्केप जो आएंगे तो आपको नीचे भी कंसोल आएगा, ये हर जगह कंसोल आपको मिलता है, ठीक है। अभी इसमें है ना, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, एनिमेशंस चेंजेस, ये कवरेज है। कवरेज में बेसिकली क्या होता है कि आपके कितनी कितनी फाइल में कितना कितना कोड यूज़ हो रहा है ये पेज में, राइट? फिर डेवलपर रिसोर्सेज है, इस पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, राइट? ये पूरा फिर से रिफ्रेश होगा, अभी इसमें देखना नहीं है, लोग बाद में चलते हैं। इश्यूज है, इश्यूज बेसिकली यही इश्यूज दिखाएंगे और कुछ खास दिखाएंगे नहीं। मेमोरी इंस्पेक्टर, नेटवर्क कंडीशंस, नेटवर्क रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग,
परफॉर्मेंस पॉइंटर, ये जो परफॉर्मेंस इनसाइड पॉइंटर है वही है, राइट। क्विक सोर्स वो इंस्पेक्ट जैसा ही काम करेगा। रेंडरिंग पे चलते हैं बिकॉज ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है। जब आप हम वेब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप चेंज करके देख सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये देखो कि आपकी साइट जिनको विजन डेफिशिएंसी है उनको कैसे दिख रही है, राइट। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मानो जिसको ब्लड विजन है, धुंधला दिखता है, राइट, तो उनको आपकी साइट ऐसे दिखेगी। तो आपका कुछ इम्पोर्टेंट फॉन्ट्स है या कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है, जैसे कि भी थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो जिसके लिए वो विजुअली बंदा आया है, तो उसको ये कैसे दिखे, राइट। तो आप ये ब्लर करके चेक कर सकते हो और उससे आप अपना डेवलपमेंट में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्पेक्ट तो होगा, ये अभी भी होगा, राइट। तो आप क्या करोगे जिससे ब्लड में थोड़ा ठीक लगे, अब यहाँ पे सीधा चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये देखो बहुत बड़ा ऐसे फिर भी दिख रहा है, ये चीज़ें थोड़ी नहीं दिख रही है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द यूज केस यू कैन डू दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ये ब्लड की जगह पे हम करते हैं समथिंग कॉल्ड प्रोटैनियोपिया, ठीक है। एज यू कैन से ये पेज पे तो कुछ खास कलर्स थे नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं चला। ये देखो मेरा इमेज पूरा चेंज हो गया, तो मैं अगर ये नॉर्मलाइजेशन करता हूँ, ठीक है, आई गेस ब्लड वाला चीज़ अभी भी इसमें है। हाँ, अभी आ गया, ठीक है। ये रेगुलर है और ये प्रोटैनोपिया है, राइट। तो अब आपकी सर्टेन चीज़ें कलर पर डिपेंडेंट है, तो वैसे दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कुछ और विजन डिफिशियंसी है, वो जैसे दिखेगी, तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा आपको कलर दिख रहा है चेंजेस। फिर एक है ट्राइटेनोपिया, ये पूरा कलर्स काफ़ी अलग हो गए, ह्यू सैचुरेशन चेंज हो गया, राइट। एंड दिस ब्लैक एंड वाइट टाइप का कुछ तो दिखता है। तो व्हेन वी आर डेवलपिंग द साइट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअल डेफिशिएंसी, तो इससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें, मैं आई कांट पॉसिबली कवर ऑल ऑफ इट, बहुत चीज़ें डेवटूल देता है आपके यार, ठीक है। ठीक है, समझा है। ये सेंसर वाला थोड़ा काम का है, अगर आप कुछ गेम में बना रहे हो वेब बेस्ड, आपका ओरिएंटेशन गामा वगैरह सब इसमें आता है, ठीक है। ये आपका अल्फा बीटा गामा ओरिएंटेशन हो गया, ये लोकेशन हो गया, अगर उसके स्पेसिफिक कुछ आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये लोकेशन और आपके वर्चुअल लोकेशन जो वीपीएन से करते हो वो थोड़ा अलग है, ठीक है, अलग है। ये टच के बाद ये टच वाला है, फिर ये यूजर स्क्रीन अनलॉक है, लॉक, सब कुछ आप कर सकते हो, आप फ़ोन पे करते हो वैसे ही जस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया एलिमेंट्स हो गया, कंसोल हो गया, ठीक है, नेटवर्क हो गया। अभी ये सब चीज़ें बची है। सोर्सेज तो मैं कल करूँगा बिकॉज इट्स अ ह्यूज थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट सेशन में, जब भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तब दो तीन चीज़ और देख लेते हैं। एक है ये परफॉर्मेंस, राइट, एंड दूसरा है परफॉर्मेंस, एक है इंसाइट्स और दूसरा है परफॉर्मेंस। हम दोनों करके देखेंगे, लेकिन वो हम करेंगे इनकॉग्निटो में। सो रिमेंबर वेन एवर यू आर डूइंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, डू इट इनकॉग्निटो। वाई, मतलब रेगुलर भी करिए, इनकॉग्निटो करने का फ़ायदा ये है, हो सकता है आपने काफ़ी सारे एक्सटेंशंस डाल रखे हो, ठीक है। सो फॉर दैट एक्सटेंशंस आपका उसका भी लोड टाइम ऐड हो जाएगा, तो हो सकता है यूज़र के पास वो एक्सटेंशन ना हो, राइट। तो उस हिसाब से देख के करना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसके लिए भी मैं F12 करता हूँ, ओपन हो गया, राइट।
इसमें मेजर पेज लोड, तो मैं ये करता हूँ मेजर पेज लोड। अभी यू कैन सी ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है, ठीक है, प्रीव्यू फीचर। मेन परफॉर्मेंस वाला यही है, राइट। इसमें ये सारे इंसाइट्स दिखा रहा है आपको। परफॉर्मेंस मेजर, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि रेंडर करने के लिए कोई एक चीज़ लॉक कर रही है। रेंडर मतलब सब सब डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इसका एसईओ बहुत इम्पैक्ट होता है। अभी परफॉर्मेंस टाइप में आपको दिखेगा एसईओ वाला पॉइंट भी दिखेगा, और लाइट हाउस, सॉरी वो लाइट हाउस भी दिखेगा आपको, राइट। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट आपका कब हो रहा है, मतलब 0.18 सेकेंड के बाद आपका कुछ कंटेंट वाला पेंट हो रहा है। सो अवर ट्राई शुड बी हमेशा ये चीज़ें ना जितना ऊपर हो सके उतनी होनी चाहिए। ये एफ सी पी, इस पे आपका पेज लोडिंग का और वो सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये रास्टराइज, ये सब बहुत डिटेल चीज़ें हैं ये। फिर लार्ज कंटेंट फुल पेंट साथ में ही हो रहा है। परफॉर्मेंस मेजर फ्रॉम कंटेंट लोडेड इन 2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड्स, मतलब दिस इज वेरी गुड। बहुत ऑप्टिमाइज्ड है ये, राइट। ऑब्वियसली ये थीम हमने नहीं बनाई है इसलिए ऑप्टिमाइज्ड है, हमने बनाया होता ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं होती, right? ये अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ओके। अभी हम जाते हैं परफॉर्मेंस पे। इसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का अलग अलग तरीके से होता है, तो हम भी अलग अलग तरीके से करेंगे, तो दोनों का परफॉर्मेंस भी अलग होगा। ओके, मैं स्टॉप कर देता हूँ और रिफ्रेश कर लेते हैं। दिस विल टेक टाइम, ये परफॉर्मेंस है, रुको पहले का अच्छा हो गया, चलो ठीक है। सो वो जो परफॉर्मेंस इनसाइड है, ये उस वो इसका ही सुपर सेट है। आपको सारी फ्रेम्स दिखेगी इसमें, कब कौन सी फ्रेम में फोटो हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, राइट। जो भी नेटवर्क टैग में दिख रहा था वही सेम चीज़ है ये देखिए। ब्लैंक थी अभी यहाँ तक, ये वो जो एफ सी पी हुआ ना, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, वो यहाँ पे हुआ। 0.18 सेकेंड होगा शायद ये, और ये सब चीज़ें आई, ठीक है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, समरी, आइडल, ये आइडल वाला पार्ट है शायद, ये सिस्टम है, राइट। सारा टाइम आइडल में जा रहा है इसका, वो आई गेस पीछे होगा, आगे तो नहीं दिख रहा आइडल। बॉटम अप, कॉल ट्री, इवेंट लॉग, इसमें अभी कुछ खास है नहीं, राइट। अगेन इसमें ही आपको दोनों फ्रेम दिखेंगे, एमी.com, ये 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो, ठीक, ओके। मेमोरी, जेएस हीप, हीप वगैरह मतलब जहाँ पे आपके वेरिएबल्स वगैरह स्टोर होती है, हीप मेमोरी होती है, राइट। डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, लिस्टनर्स, लिस्टनर्स मतलब ये ग्लोबल लिस्टनर आपके जो होगा, क्लिक लिस्टनर या फिर आपके कस्टम लिस्टनर्स। जीपीयू की मेमोरी ये दिखा रहा है आपको, और जो क्या आपका वेब वेब वाइटर। इसमें दिखा नहीं रहा है, शायद फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक वी आर क्लोज टू एन आवर ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट एक काम करते हैं, एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, नहीं लाइट हाउस देख के कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं लाइट हाउस में। इसमें एज यू कैन सी मोबाइल डेस्कटॉप दोनों है। ये क्या करेगा, अपने को एसईओ रिपोर्ट, थोड़ा बेसिक स्टैटिक एसईओ रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी, ये भी वो परफॉर्मेंस जो इसमें दिख रहा था, वो तो ये तो रिडंडेंट फीचर्स होते हैं हर टूल में, राइट। यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये थोड़ी भी चीज़ें अलग है,
ठीक है, अभी इसको करते हैं, पेज लोड को एनालाइज करते हैं, पहले डेस्कटॉप करते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये तीन मोड है, टाइम स्नैप, टाइम स्पैन, स्नैपशॉट, नेविगेशन, ये डिफॉल्ट मोड पे करते हैं। इसका काम कब आ गया पता है? जब आपको क्लाइंट बोलेगा यार, जब आपको खुद का भी प्रोडक्ट है, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो ये लाइट हाउस बाय डिफॉल्ट आता है। सी, ये परफॉर्मेंस 95% परसेंट नहीं, आउट ऑफ 100 स्कोर देता है ये। एक्सेसिबिलिटी जिस पे हमने बात किया था, राइट, एक्सेसिबिलिटी कलर के हिसाब से हो सकती है, इंटरेक्टिव के हिसाब से हो सकती है, राइट। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 आउट ऑफ 100, देन एसईओ 91, और ये क्या है दिखाएगा आपको यहाँ, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये दिस चेक्स वेडिट द एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप, वेब ऐप मैनिफेस्ट एंड सर्विस वर्कर मीट द इंस्टॉलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंस्टॉलेबल पीडब्ल्यू है। ठीक, ऊपर चलते हैं, परफॉर्मेंस, उसमें रेड है, येलो है, तो ऑब्वियसली कलर से पता चल जाएगा, राइट, आपको कि अच्छा बुरा क्या है। तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो हमने डिस्कस किया था, ये थोड़ा डिले पे आ रहा है, इसके वजह से थोड़ा ये परफॉर्मेंस का स्कोर खराब हो रहा है, बाकी ये सब ठीक है, ग्रीन है सब। अपॉर्चुनिटीज, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करके मुझे दे रहा है कि क्या रेंडर ब्लॉक कर रहा है, आपने देखा ना कि रेंडर ब्लॉकिंग हो रहा है, तो ये एक सी एस एस है। तो what we can do is we can probably load this CSS later in the schedule. इससे अपना ये टाइम रेंडर ब्लॉकिंग थोड़ा कम हो जाएगा। और ये FCP, ये TBT, उन सबके हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से हम ऑडिट देख रहे हैं। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट ऐसा कुछ नहीं, सबके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। ये टोटल ब्लॉकिंग टाइम, एलसी, ऑल, राइट। तो ये चीज़ें इजीली कर सकते हैं। ये आपको डिटेक्ट भी करके दे रहा है कि कौन सा CSS, कौन सी फाइल आपका, वो सी पोटेंशियल सेविंग्स, अगर हम ये फाइल पीछे कहीं पे लगा दें, राइट, तो 290 माइक देखिए मिली सेकेंड्स आपका बच जाएगा, आपका जो रेंडरिंग ब्लॉक ब्लॉक हो रहा है वो। फिर रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट, तो इट इज डिटेक्टिंग कि ये तीन जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो रही है, हो सकता है इसमें ना हो जाए। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ये यूजुअली कम ही होता है, बिकॉज हम बिल्ड करके जब डालते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट फाइल्स ही काफ़ी वो कम होती है, until and unless we have optimized the chunks। फिर ये सब थोड़ा ये डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, एक्सेसिबिलिटी जाते हैं, राइट। तो इसमें ये भी दिखाया जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है, ये वाला सबसे बड़ा यही कंटेंटफुल पेंट है, राइट। अच्छा रिपोर्ट तो अच्छा है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट अच्छा है। एक्सेसिबिलिटी, बटन्स डू नॉट हैव एक्सेसिबल नेम, बटन्स पे नेम होना कंपलसरी है फॉर एक्सेसिबिलिटी, क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा कि जब एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा कोई एक रीडर से आपका साइट व्यू करता है, तो बटन्स पे जो भी नाम होते हैं, राइट, वो उसे बताते हैं, क्यों? बिकॉज बटन्स आर ऑल्सो देयर फॉर नेविगेशन। तो उस पर इस बार दबाएगा तो बटन क्लिक होगा, तो उसे नाम ही नहीं सुनाई देगा तो बटन क्लिक कैसे करेगा, राइट। तो जैसे कि ये बटन है, ये बटन आई गेस यहाँ कहीं पे तो है, कहाँ है दिख नहीं रहा मुझे, अच्छा ये रहा, सी, दिख नहीं रहा, इसे हो इस पर जाता है तो होल्ड भी करके दिखाता है, इस पर नेम नहीं है, खाली बटन बटन ही है, राइट। ये चेंज करेंगे, ये स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। और ये तीसरा 91 किसका है, एसईओ, पेज इज ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग, मेटा नहीं है इसमें, right? तो दैट इज द रीजन। हो सकता है ये रिपोर्ट पढ़ने में मैंने सिंस दिस मीटिंग इज सेशन इज हैपनिंग कुछ गड़बड़ कर दियो बोलने में, बट यू कैन यूज दिस, यू माय गोल इज टू टीच यू हाउ टू यूज दिस इन योर फ्लो, ठीक है। अभी
हाँ अगेन उसको आप प्रिंट प्रिंट करके अगर आप क्यूए हो तो ये चीज़ भी आप बेच सकते हो अपने डेवलपर को। ये डिलीट कर देते हैं। मोबाइल के लिए भी सिमिलरली कर सकते हैं, ठीक है नहीं करना है ध्यान देते हैं, टाइम ज़्यादा है। So let's summarize: element picker, toggle device, elements, console, phone insights, network performance, and lighthouse. क्या वजह? ये तो एड ब्लॉक से ये रिकॉर्डर जो रिकॉर्डर पे रहा है ये कोई मतलब है नहीं, ठीक है ये यूजर जर्नी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है दैट्स फाइन, अभी हमको नहीं करना है ये भी बस एक्सपेरिमेंटल फीचर है। नेक्स्ट वी शुड एक्सप्लोर इज एप्लीकेशन, मेमोरी और सोर्स, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट बची है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको दिखेगी, लोकल स्टोरेज ये वो आपके टोकन सब कुछ यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है टोकन वगैरह सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे। मेमोरी एंड सोर्स तो पता ही है क्या है, वो कल के सेशन में आएगा सोर्स, ठीक है। और आई थिंक वी शुड कंक्लूड फॉर टुडे, बिकॉज एक घंटे का सेशन तो ऑलरेडी हो ही गया होगा, राइट। सो आई जस्ट क्लोज दिस and I'll just go back to the PPT. Right? So that's a wrap, guys. I hope you guys had fun and you guys learned something. Okay. If you have questions, ask ChatGPT, not me. Right? It might know better than me. But ठीक है कोई नहीं पूछ सकते हो, ऐसा भी नहीं है। I am here. I will be answering the questions. Thank you for inviting me here. What we'll have in the next session? हम देखेंगे सोर्स का टैब है, उसमें बहुत सारे डीबगिंग ऑप्शंस है, ब्रेक पॉइंट्स, वॉचेस, स्कोप्स, डॉम ब्रेक पॉइंट्स, इवेंट लिस्टर्स एंड मच मोर, एक्सएचआर ब्रेक पॉइंट्स। तो उसको यूज करके आप कैसे डीबग कर सकते हो एंड हाउ कुड यू एस योर डीबगिंग स्किल इवन इफ यू आर इन अननोन प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट का कोई स्ट्रक्चर कुछ केटी नहीं मिला है, कोई वीडियो नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला है, फिर भी आप कैसे कर सकते हो फ्रंट एंड बैक एंड, वो मैं आपको सिखाऊंगा सोर्स टैब में, ठीक है। आई होप टू सी यू देयर इन द सोर्स टैब और द डेव टूल्स सेकेंड पार्ट, राइट। Till then, if you have any questions, let us know. Let Zipinder or the team of JDG Ludhiana know, or you can directly reach out to me. Anyway, we all of us would be happy to help you in whichever way we could help. Thank you, guys. Thank you for joining. Let's see how it goes ahead. Bye.